Who does not love vanilla? We love good vanilla fragrances और मैं आपके लिए एक updated list लेके आई हूँ of new vanilla fragrances in my collection. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. शायद आज से 2 या 3 साल पहले मैंने एक vanilla fragrances की list बनाई थी. I will definitely link it in the but I have some new vanilla fragrances in my collection right now and I just feel the need of talking about them. Another thing that I would like to say is इस list में मैंने कोई भी Middle Eastern vanilla fragrance include नहीं किया है. I'm going to make a separate list for that. So these are all the random vanilla fragrances that I have, probably which are mostly या तो designers हैं या Zara's हैं या फिर Indian brands हैं. So let's just start with the video. Okay, so a very new addition in the designers in my collection, very beautiful fragrance is Burberry Goddess. You know, इस बार मैं जब एयरपोर्ट पे गई थी मैंने बहुत सारे vanilla fragrances try किए. I tried Devotion from Dolce & Gabbana. Oh, amazing fragrance. I fell for it. And I also tried एक वो होता है ना कि scent structure दिमाग में बैठने वाली बात, वो कभी नहीं हुआ. मैंने here and there try किया था, but I tried Dior Addict and it's not for me. Definitely not for me. That's not the kind of fragrance I would like to wear when it's a vanilla fragrance. Probably मेरी skin chemistry के साथ थोड़ा अजीब जा रहा था. Can't say कौन सा वर्जन था वो. Coming back to Burberry Goddess, it's a beautiful balance of lavender and vanilla with a lot of other things going on and some ginger in it. Signature all year round vanilla fragrance हो सकता है. ये एक बहुत versatile vanilla fragrance है जिसको आप चाहे ऑफिस हो या पार्टीज हो या डेट नाइट हो, कोई भी सिचुएशन हो आप इसको लगा सकते हो because of its versatility. And it is more of like, I won't say कि it's a thick and super sweet vanilla, but it's a great all year round vanilla. इसको चाहे आप summers में लगाओगे या winters में लगाओगे, you will just not go wrong with a fragrance like this and you will just smell so good with this and so classy and elegant. You will actually smell like a goddess. I have used it so much lately. ये starting में थोड़ा सा fresh लगता है और थोड़ा सा इसका lavender ginger थोड़ा ज़्यादा shine करता है, लेकिन base में जाते जाते ये एक sweet dense vanilla में बदल जाता है, which is not like nauseating for the summer times. It's pretty good for the summer times as well. सोचो ये fragrance मैं महाबलीपुरम में लगा रही थी और मैं पौंडीचेरी में लगा रही थी. Again, I would like to say कि ये वो सब कुछ है जो मैं YSL Libre चाहती थी कि जैसा होता. So this was actually what I was imagining with YSL Libre and it turned out to be a little bit more soapy and fresh. So this is exactly what I wanted and I got it. Next up we have Khayali Vanilla. Khayali का vanilla तो is a cult favorite, सबको बहुत पसंद है. It's a beautiful fragrance. बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है स्वीट डेंस ब्राउन शुगरी वनीला का विद वुडीनेस. और इसकी वुडीनेस बहुत ज़्यादा मिडल ईस्टर्न नहीं है, बहुत मॉडर्न वे में इन्होंने मिडल ईस्टर्न वुड्स को इसमें इंक्लूड कर दिया है. स्मेल्स सो गुड, सो मॉडर्न, सो सेक्सी एंड इट्स जस्ट दी probably the best vanilla till date. और जिनको एकदम अच्छे वाला वनीला पसंद आता है ना, उनको ये definitely हर दिन पसंद आएगा. This one definitely leans towards a bit more the autumn, fall, winter season. fall and winter fragrance है. इसको बहुत ज़्यादा आप समर्स में वेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा ब्राउन शुगर और वो डीप वुडीनेस की वजह से थोड़ा सा डीपर सेंशुअल साइड पे है. और इस फ्रेग्रेंस को लगाने के लिए आपको थोड़े से प्लेजेंट डेज की ज़रूरत है. आप एक हॉट समर डे पे इस फ्रेग्रेंस को यूज़ नहीं कर सकते. कीपिंग दैट इन माइंड, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 2 more fragrances that are actually related to this. The first one is Plum का क्या है ये, स्मोकिंग वनीला. नाम भूल जाती हूँ मैं कभी ऐसा होता है कि मैं ना फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल ब्रेन फॉग हो जाता है और मैं भूल जाती हूँ. तो अगर मैं इनको साइड बाय साइड स्मेल करूँ, नहीं बहुत ज़्यादा कनेक्शन तो नहीं है, थोड़ा सा है. I'll tell you what, कि इसकी जो स्वीट वनीलिक फील है वो इससे सिमिलर है, लेकिन इसमें सिर्फ मस्कीनेस है ड्राई डाउन में और इसमें एक वुडीनेस है.
वो वुडीनेस यहाँ मिसिंग है। इसमें एक स्मोकी फील है। मैं कह सकती हूँ कि ये लाइटर वर्जन है, इससे इंस्पायर्ड नहीं है, पर ये पता है किससे इंस्पायर्ड था ओरिजिनली? ये रेप्लिकाज फायरप्लेस से इंस्पायर्ड था। बनाते बनाते मुझे ऐसे लग रहा है कुछ और बन गया, एंड देन पीपल फाउंड अ सिमिलैरिटी बिटवीन दिस एंड ख्याली वनीला 28, which is kind of okay. Yeah, I can say that कि अगर इस तरह का सेंट प्रोफाइल आप यूज करना चाहोगे तो आप इसकी डायरेक्शन में जा सकते हो। आई कैन से दिस इज अ वनीला ऑफ इट्स ओन, स्मोकी काइंड ऑफ स्वीट वनीला इन हियर अगेन, जो कि विंटर सीजन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन ये इतना डेंस और थिक नहीं है। आई वुड लाइक टू गिव इट टू प्लम कि ये एक काफी अच्छा वनीला फ्रेग्रेंस है अगर बजट पे रह के आप एक वनीला यूज करना चाहते हो तो। एंड देन मूविंग ऑन टू अनदर वन, जो कि मुझे एक सैंपल भेजा था शारन ब्यूटी वालों ने जब मैंने उनके परफ्यूम्स बाय किए थे। This is slightly more close to Vanilla 28 from ख्याली, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ ख्याली एक बहुत ऑब्वियसली एक रिफाइंड फ्रेग्रेंस है, ये एक बहुत ही अतर लाइक फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपको अतर लाइक फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है ना तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इज मोर ऑफ दिस स्वीट डेंस वनीला फ्रेग्रेंस जिसमें कि एक ब्राउन शुगरी नोट है, और ये थोड़ा सा ज्यादा क्लोज है प्लम के फ्रेग्रेंस के कंपैरेटिवली वनीला 28 के। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि अगर अदर लाइक फ्रेग्रेंसेस आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो, देन डोंट गो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ओनली गो फॉर दिस इफ यू कैन वेयर दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस। बट ये भी एक अच्छा शुगरी ब्राउन शुगरी वनिलिक अल्टरनेटिव है ख्याली वनीला 28 के लिए। सो या, जस्ट अनदर ब्यूटीफुल वनीला फ्रेग्रेंस। मैं बार बार इस फ्रेग्रेंस को चैनल पे वापस ले आती हूँ, एंड विच इज कैशरल्स Yes I Am। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस जिसमें कि कार्डमम, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स, वनीला, लिकोरिश और क्या क्या नहीं है। इट्स जस्ट अ beautiful, mature, sexy, cosmetic-like fragrance, लेकिन with a bit of milkiness to it and a mix of licorice, vanilla and whatnot। बहुत complex scent structure है इसका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये fragrance एक बहुत ही अच्छी luxurious makeup like fragrance है। हाँ, this is just so good. It's so good, it's so mature, you will smell serious and you will smell glamorous when you put this on। बहुत सस्ते प्राइस रेंज में here and there, इनफैक्ट Amazon पे भी मिल जाती है, कभी मिंत्रा पे मिल जाती है, अराउंड 1700 की प्राइस रेंज में भी मिल जाता है ये छोटे वाला पैक इसका। It lasts and it performs, it projects and it makes you smell like, I don't know, a gorgeous woman, like a grown-up woman. And if you wear a fragrance like this, people will definitely take you seriously. It's a very beautiful balance of florals and lactonic notes and that beautiful sweet spiciness in it. Another beautiful vanilla fragrance is Khayali ka Utopia Coco Vanilla. Yeah, I think यही है इसका नाम। हाँ, this again is a great creamy sweet coconutty vanilla fragrance। You know, actually I'm feeling very tired today, I don't know why। मेरे पास इंटेंस और ओरिजिनल वर्जन दोनों ही हैं, एंड एट प्रेजेंट ये इंटेंस वाला जब मैसरेट हो गया है, आई एम फीलिंग दैट वो एक इंसेंसीनेस और एक जो शार्पनेस इसमें थी वो गायब हो गई है, बिल्कुल गायब हो गई है, एंड इट हैज़ बिकम दिस ब्यूटिफुल creamy, sweet, coconutty fragrance. Like, it is your dream sweet vanilla coconut fragrance in here. Another sexy and versatile fragrance that I have is Jean Paul Gaultier's La Belle। I know बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा स्प्रेज यूज़ नहीं होते हैं। It's just 2 sprays and you're good to go, और वो पूरा दिन लास्ट करते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। इट्स गुड, इट्स अ ग्रेट फ्रेग्रेंस। पता नहीं क्यों मुझे इसमें ना पचूली के हिंट्स आते हैं, लोग बोलते हैं इसमें पचूली नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसमें पचूली है। इट्स अ मिक्स ऑफ फ्रूटी, फ्लोरल, वनीला एंड पचूली। वो पचूली इसमें एक सेक्सीनेस ऐड कर रही है, एक ऊम्फ फैक्टर ऐड कर रही है, और ये एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल टू फेडिंग इनटू अ नाइट टाइम डेट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस हो सकती है। इट्स जस्ट वेरी वर्सेटाइल, इट्स गुड, एंड ट्रस्ट मी, you cannot go wrong with this kind of fragrance. Next up we have Hypnotic Vanilla from Zara। Okay, so personally मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। मैंने हमेशा बोला है कि इसकी ओपनिंग थोड़ी सी वियर्ड है, ये थोड़ी सी प्लेडोई नटी फ्रेग्रेंस है।
कि जो ब्यूटी है ना इस फ्रेग्रेंस की वो इसके ड्राई डाउन में है। जैसे जैसे ये सेटल डाउन होती जाती है स्किन पे, ये सॉफ्ट होती जाती है, ये और ज़्यादा ब्यूटिफुली डेवलप होती जाती है, एंड आई जस्ट लव दैट अबाउट दिस। दिस इज अगेन नॉट लाइक नाइट आउट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, दिस इज मोर ऑफ अ नाइट टाइम फ्रेग्रेंस, इट्स मोर ऑफ अ कोजी फ्रेग्रेंस आई कैन से। बहुत ज़्यादा आउट देयर प्रोजेक्टिव, थोड़ी प्रोजेक्टिव तो है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इसमें बिल्कुल प्रोजेक्शन नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट प्रोजेक्शन है इसकी, बट इट्स नॉट लाइक टू मच आउट देयर, इट्स नॉट लाइक अ लाउड फ्रेग्रेंस। इसके केस में ऐसा नहीं है। व्हेन पीपल विल हग यू, उनको एक ब्यूटिफुल वनीला बबल फील होगा आपके अराउंड, एंड they'll just feel so good after smelling you, but they'll really have to hug you to smell you or sit really close to you. So that's the kind of vanilla that this is. Probably it's a great Netflix and chill kind of fragrance. But then we have a sexy out there loud fragrance, and that is Golden Decade from Zara. ये एक बहुत beautiful floral और soapy वनिलिक फ्रेग्रेंस है। मैं हमेशा बोलती हूँ कोई इस फ्रेग्रेंस को सोपी नहीं बुलाता, बट दिस इज अ सोपी फ्रेग्रेंस। इट्स अ वेरी वेरी लग्जूरियस सोपी फ्रेग्रेंस विच हैज़ अ वनिलिक ड्राई डाउन, और ये एक बहुत अच्छी ऑल ईयर राउंड फ्रेग्रेंस भी हो सकती है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में दिस इज मोर ऑफ दिस सेक्सी प्रोफेशनल बट यू नो काइंड ऑफ कीपिंग इट क्लासी बट स्टिल कीपिंग इट लिटिल प्लेफुल, नॉट टू मच, or maybe a little flirty but not too much. It's great. It's great. मैंने बहुत बार इस फ्रेग्रेंस के बारे में बात की है. This is just another fresh, luxurious, soapy, vanillic fragrance which you will fall for. And it is loud. It's out there. You can smell it. People can smell it on you. It will leave trail behind from wherever you pass. And the last one, and also kind of among my most favorite vanillas, is Zara Sublime Epoch. सरप्राइजिंगली ये फ्लोरल वनीला फ्रेग्रेंस का कॉम्बिनेशन मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती आपको. दिस इज डेफिनेटली अ वनीला ड्रीम कम ट्रू फॉर अ फ्लोरल फ्रेग्रेंस लवर. अगर आपको फ्लोरल्स नहीं भी पसंद होंगे ना, तब भी आपको ये फ्रेग्रेंस पसंद आएगी. इसके जो स्वीट फ्लोरल्स और देन वो स्वीट वनीला एंड द वे इट डेवलप्स इन द ड्राई डाउन इज जस्ट सो ब्यूटिफुल. यू रियली हैव टू ट्राई इट टू नो इट. नोट्स देखने के बाद आपको ऐसे लगेगा हाँ ठीक है यार, ऑरेंज ब्लॉसम जैस्मिन फ्रेग्रेंस ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है, हर तीसरे परफ्यूम में ये नोट्स हैं. बट नो, इट्स डिफरेंट, it's beautiful, it's the perfect amount of sweet. The vanilla in it is very very beautiful, sweet and thick, and वो florals का और इसका combination और balance बहुत अच्छा है. So Sublime Epoch is a very beautiful floral vanillic fragrance. And that was the last one in this list, guys. I hope you enjoyed this video. Comment section में अपने requests डालते जाइए, and wait for the video that I promised you that I am going to talk about Middle Eastern fragrances जो कि vanilla dominating है. And trust me when I say Middle Eastern vanillas, they're the best in the market. Stay tuned for that. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.